center. So it's my pleasure to introduce ma'am, and before presenting give a brief introduction of ma'am, I would like to request Dr. Nisha Bala to kindly felicitate Professor Viman Rar ma'am. Ma'am is professor at Department of Chemistry at Khalsa College, and ma'am done her PhD as well as PhD from Delhi University and postdoctoral from IIT Delhi. And ma'am has been involved in GAD TLC Center, which is basically the main center we basically conducting this FDP, and all the certificates which you are getting will going to be given by the GAD TLC Center once you will going to qualify the assignments and projects which has been uploaded on that. And more introduction about that center has already been given by Professor the principal Khalsa College, Jaswinder sir, and you all know that, but the information about that center. And now I request ma'am to please say a few words. Thank you so much. First of all, good afternoon everyone, and I think it's a delight to meet the participants in real. So most of the programs that we have been conducting in the last most 3 years were online, but prior to that we had been conducting face-to-face also. But I am happy that we are having now back the face-to-face mode, and especially when we talk about the skill enhancement courses, the hands-on is very important component. So if we look in the training requirement, it has to go both ways. Wherever there are hands-on requirement, we should be conducting the face-to-face hands-on mode. But then if we want to have more learning, which is definitely, most of you are youngsters, it's a long innings for all of you, and what I will say is learning has to be a continuous process. Don't think that once you have become now permanent and अब तो जी सब कुछ हो गया ठीक, एक दो FDP कर लिए, so that is not going to be the mode. In the changing times, when the policy is changing so much, the pedagogies are changing, the techniques and the tools are changing, the industry is changing so much, and our students have to be prepared for these requirements. So we have to be aware in all the fronts, and the moment you become aware in all the fronts, where the research grants are coming, how to write the project proposals and all, so all they become a very simple thing, I will say. And I can say this from my own experience, thanks to my entire team, right from Professor Jaswinder Singh sir, Professor Bakshi and others, where we have completed projects more than 20 crores at my college. So all of you can do more than that, but it has to be a continuous effort. So keep on preparing yourself in subject specific requirement, which is the very first thing. In your classroom, there should not be any compromise in front of your students that yes, I don't know this, because the students are definitely smarter than us with the chat GPT, the Google search. अब तो Google search भी काम कर नहीं रहा. So we have to be now changing our mode into more applied, and that's where the moments you are having these hands-on thing, I will rather say do make videos of this also and try to bridge the gap between the theoretical and the experimental part, especially because I also belong from the science chemistry. So the moment you bridge the gap, the understanding becomes better, and I am sure that this process will be making your understanding of these theoretical part around this also better. But the more you start teaching, the more comfortable you become in your, but then that's not the thing you should stop. Whatever you keep on learning, you become expert. It is your responsibility to give it back to your fellow colleagues like we are doing. And also, I will say design something for your school programs, your school colleagues who also require hand holding. So something is a group if you want to have, and if you want to have a brand for certification and all, provided the entire theme is good and all,
we are there to help you out. So with these words, I wish you all the very best, and special thanks goes to entire team of Daulat Ram College, right from visionary leadership of Professor Savita Roy ma'am, and also Delhi University Skill Enhancement Courses Committee. It is not the only course. All of you can tell your other colleagues also that we are going to have many courses. We already have a zoology, aquaculture type. We will be having some home science courses. We are also planning hands-on with Hisar Agriculture University, where agriculture based like green and other farming techniques will be there. And that is again a subject neutral thing. So if you can pick up those also, need not be you but your colleagues from your college, so that will be. So with this, I wish all the very best, and please complete all the assignments and projects. That is something which we really look for. If something is missing, I'm sorry, we are slightly strict, I think that they has already told you, but I'm sure all of you are so much competent and bright that whatever assignments are given, you will be able. So thank you everyone. Thank you. Yeah, participants, if you have any query Yeah. related to FDP, then you can ask to ma'am. NOC, I have given a solution that there can be undertaking by yourself, so that we will, okay, fine. Any other issue if you are facing, we'll try to find solution. कितनों ने ऑनलाइन मिले मेरे से? ओह वाह, quite a good number. Okay. मैं almost आपको सभी जानती हूँ. Okay, thank you so much, and I also like to thank all the resource persons who are helping in this process. Thank you, sir. Thank you all the others. Thank you, ma'am, for your informative and very interesting that you have told to our all the participants, and encouraging them how they can give their contribution to the society, college, as well as all the colleagues. They can contribute with each other. With the efforts of you, even ma'am, you are guiding us, all of us. Whenever we see, we have heard about FDPs या refresher course, आप जो organize करते हैं वो हम लोगों को motivate करता है. We can take from you something कि जो हम भी start कर सकते हैं. This is the first part. मैम ने हमें motivate किया कि we have to do this stuff. मैम की inspiration से we have done with the efforts of Vimal ma'am as well as the principal ma'am. This FTP has been organized, and all the team members of our college, they are giving their best. Thank you everyone. Thank you ma'am. So let's start with the black body radiation curve. नहीं, अभी तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कर्व बना लेते हैं. Okay, let's start. So I hope you all remember black body radiation curve. It was in 19th century. The basis of this black body radiation, quantum mechanics was invented. Okay. So
at different, when you see spectral energy distribution with reference to wavelength, so it was like almost this way. At different temperature, T1, this is at T2, this is at T3. Okay, this is lambda 1, this is lambda 2, this is lambda 3, m, so on. Okay, so as soon you increase the temperature, T3 is greater than T2 is greater than T1, and that's how it is moving towards lower wavelength. So that's what it is, and lambda m is proportional to 1 upon T, and that's how lambda m T is equal to B. And this was Wien's radiation law, and we are talking here about it and how to demonstrate in the visible range. ठीक है, हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए. तो यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक वाल्व हाउ वी कैन डू इट. सो यहाँ पर अगेन वी हैव वेरिएक, कुछ करेक्शन हो तो आई कैन डू इट. सही है ना? नहीं वैसे ठीक है ना? चलिए, तो when we start with low temperature, आप लाइट ऑफ कर दीजिए. अभी कोई नहीं बैठा है सबसे पीछे, सब थोड़ा आगे आ गए हैं. इधर का भी कर दीजिए. देखिए अभी ये 0 पे है, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ. कोई आकर के यहाँ पर देखना चाहें देख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको अभी 4-5 वोल्ट के आसपास या उससे भी कम देता हूँ. पहले तो मैंने मान लो, हो सकता है वेरिएक उतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा हो. ठीक है, तो मैंने अभी फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट ये दिया है यहाँ पर AC. सो देयर इज ए करंट और नॉट? यस, yes or no? There is a valve, we have applied field, there is resistance of this metal wire inside this electric valve. So is there any current inside this or not? Yes, might be very small current, and due to this small current there is a heating. If there is a heating, so that means it is at the some temperature. There is some temperature. Yes. So we call it temperature T1. But when it is at temperature T1, it must radiate something. Yes or no? Yes. So it is radiating. So radiations are in the range of the infrared. ठीक है ना? Which are not visible. ठीक है ना? तो these infrared radiations are not visible. So उसका जो wavelength होता है वो सबसे ज़्यादा visible range से भी ज़्यादा होता है. So first curve at the temperature T1, ठीक है, जो आपको मिल रहा है वो आपका यहाँ पर कर्व इस तरह से है. बट क्या ये जो कर्व है, इट शोज दैट इट इज स्प्रेडिंग, इट इज इमिटिंग ऑल द रेडिएशंस. ठीक है ना, बट अमाउंट में भी डिफरेंट. ठीक है, तो अमाउंट जो है इंफ्रारेड रेडिएशन का सबसे ज़्यादा है, एंड अदर रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है दैट इज वेरी स्मॉल, बट it is emitting all the radiations having different wavelength. ठीक है, now I am increasing applied voltage. क्या देखा? नजदीक वालों को तो दिखेगा कुछ. ठीक है, तो अभी ये विजिबल रेंज में आ गया है, और विजिबल रेंज में क्या क्या कलर दिख रहा है? रेड. ठीक है, तो जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से आपका अब विजुअल रेंज में रेड वहाँ पर आपको आ रहा है. ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने वोल्टेज अप्लाई किया, बढ़ाया है, करंट बढ़ा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ गया.
और आपका यहाँ पर वेवलेंथ शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। यस और नो? तो शिफ्टिंग वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है ग्राफ में? ठीक है। नाउ अगेन वी आर इंक्रीजिंग इट। तो रेड से ये थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ इसका मूवमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है ना? तो रेड जो इनिशियल था उससे ये ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगेन एट हायर टेम्परेचर वेवलेंथ एट विच पीक इज यू आर गेटिंग पीक इज मूविंग टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। ठीक है। अब आप और बढ़ाएंगे तो धीरे 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 ये ऑरेंज से येलो की तरफ ये मूव करेगा। वॉलेट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो डोंट वेट फॉर वॉलेट, ठीक है। बट हाँ वॉलेट भी आएगा, लेकिन कब आएगा? फिलामेंट फ्यूज ना हो सर। सॉरी, अगर वोल्टेज बढ़ाने के बाद फिलामेंट फ्यूज ना हो, ये कंडीशन हो जाए तो वॉलेट आता। नहीं, उसके अलावा भी तरीका है कि आप उसको माइक्रोस्कोपिक आपके स्ट्रक्चर देखें डिफ्रैक्शन वगैरह करा के, देन इंटेंसिटी ऑफ वॉलेट वुड बी हाईएस्ट। मिक्सर मिल रहा है, ठीक है ना, जब आप इसको और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है ना, मिक्सर मिल रहा है, लेकिन उस मिक्सचर में सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा है, तो जब उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे, स्पेक्ट्रम देखोगे, तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आपको मिल सकती है। एनर्जी ज़्यादा हो गया ना, तो 1000 वोल्ट पे जब चलाएंगे तो वहाँ कहीं फ्यूज या वायलेट लगेगा तो उसमें बस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फिर ये येलोइश होता जाएगा, ठीक है ना, और you will not get of course wallet in this way, but somehow we could explain students कि भाई ये towards जो lower wavelength shifting होता है at higher temperature, वो कैसे आप उसको explain कर सकते हैं। This is the way you explain it, ठीक है ना। This is just a demonstration, not for quantitative assessment. Sorry, ठीक है। तो वो तो सिंपल जो आपका नॉर्मल जो आपका आएगा वो आ रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वाला। सो मैडम आपने कहा था, किन्होंने कहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए? तो इज इट ओके? हैप्पी? चलिए, थैंक यू। लाइट ऑन कर दीजिए। आई हैव अनदर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये मैंने वेरिएक लिया है, यू कैन रिप्लेस इट विद रेगुलेटर, है ना। तो रेगुलेटर यहाँ पर 7 स्टेप्स सर ने बताए थे, बट ऐसे भी रेगुलेटर मिलते हैं जिनको आप विदाउट स्टेप यू कैन इंक्रीज, ठीक है ना, मार्क के विदाउट स्टेप वाले भी मिलते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो 150-200 रुपये का आ जाएगा, तो उससे भी आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। So now this setup, is for explanation of thermal conductivity of metal. I don't know that is in syllabus or not. ठीक है। So what we have, there is a stand, ये सब जानते हैं, आयरन रॉड, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन, और ये आपका एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट, एंड यू ऑल्सो कैन एक्सप्लेन कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है थ्रू एनी मेटल। सो मैंने क्या किया, इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया, और ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा अभी, एंड इसको इसके अंदर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। थर्मामीटर लगाने के लिए भी होल कर सकते थे, यहाँ पे भी होल किए हुए हैं, देखिए, ठीक है। तो टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूँगा, तो मेरे पास थर्मामीटर है, ठीक है। तो अभी कितना टेम्परेचर है देखिए मैडम, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर अभी 20 के आसपास है, 23 या वाट। इसमें भी देखिए कितना है, 27, 28, 28, ठीक है, 28 होना तो दोनों का सेम चाहिए, कंपनी अलग होगी, ठीक है। कितना है, 29,
तो 1 डिग्री का डिफरेंस हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में सिलेंडर को जाके कटवा लिया, थर्मामीटर हमारे पास था ही, एक वुड का टुकड़ा लिया, यहाँ पर इससे होल्ड कर लिए, आयरन रोड भी थी, स्टैंड में लगा करके यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, इट विल टेक टाइम। ये क्वेश्चन ये है कि ये कितने वॉट की है। ये अलग अलग वॉटेज की मार्केट में मिलती है, 25 वॉट की भी मिलती है, 50 वॉट की भी मिलती है, ठीक है। अभी जो यूज में ले रहे हैं वो 25 वॉट की है। तो व्हाट इज यूज ऑफ इट? तो फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। हाँ, कौन? सॉरी, सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट वे है, K इज इक्वल टू होता है Q D अपॉन A डेल्टा T, Q D अपॉन A डेल्टा T, ठीक है। Q इसका वॉटेज, कितने वॉट का आपका पावर दे रहे हो उसको, और D यानी कि कितनी, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है दोनों थर्मोमीटर के बीच का, क्योंकि आप मेजरमेंट इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अबाउट 17 सेंटीमीटर के आसपास है ना। स्केल से मेजर कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर वाट एवर स्केल से मेजर कर सकते हैं। एंड डायमीटर, क्या हुआ, ज़्यादा लग रहा है? हाँ, नहीं 6 से तो ज़्यादा होगा, 17 बताइए कितना है, कुछ अंदाजा लगा? 11 से सर 10 के अराउंड होगा। 10 सेंटीमीटर, ठीक है, गुड आइडिया। और इसका डायमीटर कितना है, कितना लग रहा है दूर से? 2 सेंटीमीटर, 1.5 to 2, 1.5 से 2 1.5 से 2 क्या? अराउंड 1.5 सेंटीमीटर, अराउंड 1.5 2 एवरेज करें दोनों का। ये 10 से 12 यानी कि 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका डाया आ गया। अब क्या बचा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी निकालने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, आप आके देखिए। आप बता दो। अरे नहीं, आपके देखिए। कब तक सीट पे बैठे रहेंगे? कुर्सी का मोह छोड़िए, आ जाइए। बता दीजिएगा। अरे आ जाइए, आ जाइए। आपको सीधा रिजल्ट चाहिए होता है। इतना तो बोलो है, बाकी का हो सकता है। ठीक है, इस तरह से सॉलिड। मैंने बोला था, आपने सुना नहीं था। ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और एल्युमिनियम का है, और इसका आप थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्यू डी अपॉन ए डेल्टा टी। डी अभी पता चल गया, आप ही ने बताया, उन्होंने बताया, और ए अभी इन्होंने देख लिया, और क्यू मैंने बता दिया 25 वॉट। अब बचा हुआ है डेल्टा टी। तो हम मान लो 5 मिनट 10 मिनट के बाद में इसको चेक करें तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है, और उससे आपको डेल्टा टी आ जाएगा। कितना वोट का है? 25 वॉट। वो अलग अलग वॉटेज की आती हैं, आप खरीद लीजिए, कितने भी वॉट की, 25 वॉट की खरीद लो, 50 वॉट की खरीद लो, डजंट मैटर। तो ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पर उसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको बांधना ही तो है। नॉर्मली क्या होता है, आप यहाँ पर एक कैंडल लगाओ, उसको गर्म करो, कितनी देर में वहाँ पर पहुँचेगा, उन सारी आफतों से बचने के लिए आपने ये सोल्डरिंग आयरन लगा दिया। ये भी तो गर्म ही करेगा, गर्म करने के लिए ये है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इससे ले सकते हैं। क्वालिटेटिव डिस्कशन तो होगा ही, उसको बच्चे इसको हाथ लगा के चेक कर सकते हैं गर्म हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर गर्म ज़्यादा है, यहाँ पर गर्म कम है, तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है
वो बच्चे उसको खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, सर आ गए तो सर ही बताएंगे, एक बता देता हूँ मैं। देखिए ये दिस इज स्मॉल एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन सी इट एवरीवेयर, बट आई एम गोइंग टू आस्क अगेन क्वेश्चन। लाइट ऑन होती है एलईडी में, क्या है? फैराडे लॉ। वेरी गुड, है ना, एक्सपेक्टेड है, करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर अगेन क्वेश्चन तो है बैकग्राउंड में। फैराडे लॉ एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स व्हेन यू आर मूविंग दिस वन और दिस वन, और देयर इज चेंज इन करंट। देयर आर 3 वेज, है ना, और 4th वे कि दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना, यही ऑप्शन है। तो ये बैटरी लगी हुई है, आई एम नॉट चेंजिंग करंट, यस और नो, है ना, और ये मैं मूव कर रहा हूँ और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, बट अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं छोड़ दिया, अभी भी लाइट जल रही है। अब क्वेश्चन निकला, वाई? we need to change the current to avoid using oscillator or switching circuit. अगर वो करंट बढ़ेगा बट कॉम्पोनेंट ऑफ करेगा तो भी चेंज करेगा। तो क्यों हो रहा है? सॉरी, ट्रांजिस्टर यूज कर रहा है ऑसिलेटर स्विच के साथ या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर लगा है। इसे कुछ लगा कर Because of the angle. ट्रांजिस्टर है। हाँ, देन कांटेक्ट करने से क्या हुआ? शॉर्ट हो जाना चाहिए था। शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि कॉपर वायर ऊपर लेमिनेशन होती है, पॉलीमर लेमिनेशन। आपको कभी यूज में लेना हो इसको तो पहले उसको हीट के साथ में रखना पड़ेगा, फ्लेम के साथ में लगाना पड़ेगा, तब जाके उस पर कॉन्टैक्ट भी बना सकते हो। तो आपकी जो ये कॉयल बनती है इसमें भी इसीलिए इंसुलेशन रहता है, हीटेड होने के बाद में वो शॉर्ट हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, तो स्टेशनरी में भी है ट्रांसफार्मर बन गया। हाँ, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एंड बेस्ड ऑन दैट बिलियंस में बिजनेस करते हैं एप्पल चार्जिंग के लिए। आईफोन आप चार्ज करते हैं, पैड पे रख देते हैं और वो चार्ज होता रहता है। दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली। इसमें डीसी है, एसी है? ये डीसी हैं? ये तो डीसी है ट्रांजिस्टर से। वो तो बताओ। नहीं, वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ? तो ही एक्सप्लेन वेरी वेल कि, और आपने भी बताया एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। ओके, ट्रांसफार्मर के लिए एसी होनी जरूरी है। ठीक है, Change of flux. हाँ, फ्लक्स। बट इसको आप जब बनाएं, है ना, इसको ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि आप कॉइल बना रहे हैं, यू हैव 2 एंड्स और ट्रांजिस्टर के लिए चाहिए 3 एंड, तो 3rd एंड कहाँ से आया? ठीक है ना, तो फॉर फैब्रिक वेरी गुड, लेकिन एक कोई भी वायर है उसके एंड तो 2 ही होंगे, एक ये एंड है, एक ये एंड है। ट्रांजिस्टर 2 एंड पे होता है, इसमें एक कॉमन होता है। आप आके तो देखिए, सीट का मुंह तो छोड़िए। या फिर मैं वहीं लेके आ जाता हूँ। अभी हम पीपल टीचर हैं, आप टीचर हैं। नहीं, मैं टीचर हूँ, आप भी टीचर हैं। नहीं, हम पीपल टीचर हैं, वो है ना। हाँ, तो ये ट्रांजिस्टर है, एक ये ऑसिलेटरी सर्किट बन रहा है basically। करेक्ट। तो मेरे अभी बात ये थी कि 3rd तीनों कनेक्टेड हैं, हाँ, तीनों तो connected 3rd कहाँ से आया? तो तब ट्रांजिस्टर में एक कॉमन होता है ना। कॉमन तो कुछ एक मिनट इसको पकड़िएगा।
दो टर्मिनल हुए, एक बैटरी के, दो टर्मिनल हुए एक बैटरी के। बैटरी तो एक ही है। एक है बैटरी एक ही है। इनपुट और आउटपुट का ऐसा कह लो, दो टर्मिनल इनपुट, दो टर्मिनल आउटपुट, एक टर्मिनल कॉमन होता है, तो 3 टर्मिनल बने और 3 ही टांगे इसमें हैं। चलिए कोई नहीं, तो यू ऑब्जर्व इट, ठीक है ना, यू ऑब्जर्व इट। आप जब लूप बना रहे हैं, ठीक है ना, तो एक बार उसको छोड़ करके अगेन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग लूप, है ना। तो एक पॉइंट आप इन बिटवीन बनाते हो। मान लो आप 50 टर्न्स लगा रहे हैं, तो 25 के बीच में आप उसको अलग से वायर निकाल करके एंड देन यू स्टार्ट अगेन 25। तो थर्ड आप एंड वहाँ से जनरेट करते हैं टू मेक इट कॉमन, ठीक है, इस तरह से आएगा वो, ठीक है। तो 2 एंड हो गए मीटर और उसके लिए, और थर्ड आपका इस तरह से आता है। 25 और टर्न बनाए, फिर वायर को वहीं छोड़ दिया, तो उसको कटिंग नहीं किया और सीधा फिर से और स्टार्ट कर दिया। तो थर्ड एंड आपका ऐसे बना, कॉमन कर दिया। कॉमन करने की, ठीक है ना। तो वो आपका करंट उस तरह से चेंज हो रहा है। तो करंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट इस तरह से चेंज हो रहा है एंड दैट्स हाउ फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एलईडी वहाँ पर ऑन है। वेरी सिंपलेस्ट बट इट नीड थॉट। विपिन जी ने आपको एंगेज रखा, शिकायत तो दी। दो सवाल इन्होंने छेड़े हैं। एक मैडम ने छेड़ दिया, यदि हम पानी बोतल का पीते हैं, अधिकतर लोग आर वाला पानी पीते हैं, यहाँ पे क्यों? क्योंकि डोंट ट्रस्ट कि जो कम्युनिटी का पानी आ रहा है वो साफ है या नहीं है, क्यों करते हैं? ओके, या अफोर्ड कर सकते हैं इसकी जगह। आप यदि ऐसी जगह चले गए जहाँ पानी नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज, क्या आने वाले टाइम में वाटर क्राइसिस होने वाली है? ठीक है ना, आपसे बच्चे भी पूछ सकते हैं। बट डू यू नो वन थिंग, कि ये जो मदर अर्थ है, ग्लोब जिस पे अपन रहते हैं, ठीक है ना, इसमें ऑल द मटेरियल आर कंजर्व्ड। यहाँ से न तो कोई चीज़ बाहर जा सकती, न बाहर से आ सकती। ओके, इट्स ऑल आइसोलेटेड, शील्ड। तो आप कह रहे हो कि पानी की कमी हो जाएगी, पानी यहाँ से बाहर जाता थोड़ी है और न कहीं से आता है। ये जितना बिलियन साल पहले था आज भी वही है, एंड ऐसा ही रहने वाला है। जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर, और उस नंबर की वजह से वाट एवर वाटर वी आर कंज्यूमिंग एंड वी आर थ्रोइंग आल्सो, ठीक है ना, तो उसमें कुछ केमिकल कंटेंट वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कैन यू इमेजिन, पहले समुद्र का पानी मीठा होगा, लेकिन ये जो रिसाइकिल हो रहा है ना, बार बार बारिश होती है, एवोपरेशन होता है, एंड जो सॉल्ट एंड मिनरल इधर उधर हैं वो जाके सब ड्रेन हो जाते हैं समुद्र में। तो जो सैलिनिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, तो कहीं कुछ जा नहीं रहा, खाली डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है मटेरियल का ऑन द ग्लोब। ओके, पहले कहते थे जो गर्मी नहीं होती थी, नहीं, हाउ इट इज कंजर्व? नहीं, मैं कह रही हूँ, if water is conserved due to the isolated system, then how the sea level is rising? So this is only a redistribution. जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघल पिघल के ज़्यादा वहाँ जाती जा रही है। यस, ओके, ये बारिश होना, ऊपर जाना, ये सब साइक्लिक है। एंड साइक्लिक में इवन जो ये वेदर कंडीशंस है ना, कहीं ज़्यादा या तो बाढ़ आ रही है, कहीं ड्राउटनेस हो रही है, ठीक है ना। तो इट्स ओनली ए रीडिस्ट्रीब्यूशन, डायनेमिक फिनोमेना विच इज़ हैपनिंग। ओके, अल्टीमेटली नथिंग इज गोइंग टू गो अवे फ्रॉम हियर, ठीक है ना। पेट्रोलियम भी वैसे का वैसा रहेगा, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। जो ज़मीन से आप निकाल रहे हो वो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में जा रही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड से वापस पेट्रोलियम बनना टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। अपने लाइफ टाइम में नहीं देख पाएंगे। अपना लाइफ टाइम कितना है? 100 साल, 200 साल,
बट मदर अर्थ के लिए तो इट्स इन बिलियन ईयर्स. ओके, ठीक है. तो अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में वाटर, जो अधिकतर एनवायरमेंटलिस्ट बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें. ओके, यदि हम इसको स्प्लिट करें तो हाइड्रोजन निकलती है और ऑक्सीजन मिल जाती है. तो सब लोग करो ना स्प्लिट इसको, मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल कम. लेकिन मोर ऑक्सीजन भी फायदेमंद नहीं है. क्यों? आप चल जाओ अंटार्कटिका पे, ठीक है ना, वहाँ आपको पत्थर से पत्थर रगड़ने नहीं देते, फट से आग लग जाती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी हाई. ठीक है ना. तो यदि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा भी हो गई ना, दैट इज़ आल्सो नो गुड. ओके, तो ये एनवायरनमेंट खुद ही बैलेंस करता है व्हाट इज़ द ऑक्सीजन लेवल एंड व्हाट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. राइट, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी. ओके, बट द क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, जो कि हमें नॉर्मली नदी तालाब में कहीं भी मिल जाता था, उसकी कमी है, वो कम हो जाएगा. ठीक है ना. समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है, एज यू सेड, राइटली सेड, धीरे धीरे लेवल बढ़ती जा रही है. ठीक है ना. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ओके, सो मटीरियल इज देयर बट इट्स फॉर्म इज चेंजिंग here and there. Its distribution is changing, and that is what is thermodynamics. Okay? तो थर्मोडाइनमिक्स क्या कह रही है? एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी घटती कभी नहीं. ठीक है ना. एंड एंट्रोपी इज डिसऑर्डर. तो दुनिया में जो नेचर ने किया था सेल्फ ऑर्गेनाइज या ऑर्डरिंग, ठीक है ना, वो ह्यूमन इंटरवेंशन से क्या हो रहा है? डिसऑर्डर. ओके, गड़बड़ हो रहा है. दैट्स ऑल. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. एंड प्रोबेबली जो हम एज ए टीचर जहाँ भी मिलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, उस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. तो यदि आपको भी समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक बात है, तो फिर आप अपनाओ, अच्छी बात है. तो ठीक है ना. आप भी इस तरह से शेयर करो कि यस, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, घबराने की बात नहीं है. इट्स ओनली द रीडिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो गंदा पानी है तो उसको साफ़ करने के तरीके, ठीक है ना. तो यू हैव टू वर्क आउट. यदि पेट्रोलियम नहीं मिल रहा तो कोई और दूसरा तरीका है जो हमें फ्यूल की तरह से यूज़ करना है. ठीक है ना. तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि फ्यूल जो कि ईजीएस्ट मिलता था, ठीक है ना, वो लकड़ी मिलती थी, ठीक है ना, नेचर से काट पीट के. कोयला मिलता था, उसको पार्शियली कंबस्ट करके. लकड़ी का कोयला पता है कैसे बनते हैं? लकड़ी को पार्शियली कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं इन ए क्लोज एनवायरनमेंट, और जो काला काला रह जाता है उसको तो बोल देते हैं कोयला, क्योंकि वो फिर जल जाता है. ठीक है ना. एंड यदि कम्प्लीटली बंद कर दिया तो ऐश बन गई, वो कुछ काम की नहीं है. बट ऐश को भी आजकल मिट्टी में मिला के कोई न कोई काम की चीज़ बना देते हैं, फिर कोयला बना देते हैं. ओके, थोड़ा सा गोबर मिलाते हैं, मिट्टी मिलाते हैं एंड ऐश मिलाते हैं. ऑलराइट. So, well, that kind of cycling, recycling the material, ये human tendency है. सर्वाइव के लिए कुछ भी कर सकता है. ओके. इन द सेम स्टोरी फ्यूल के लिए, तो फ्यूल की जो ये हाइड्रोजन एज ए फ्यूल फॉर फ्यूचर, ओके, इसकी कहानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी है, 30 से भी 35 साल पुरानी, 35 ईयर्स बैक, जब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी शुरू हुई एंड दे स्टार्टेड ए हाइड्रोजन एनर्जी टास्क फोर्स. ओके, एंड वी स्टार्टेड सम प्रोजेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, 1984-85. So that was the first hydrogen project. So what is the hydrogen? From where the hydrogen comes? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नोन है कि इलेक्ट्रोलिसिस से आपको हाइड्रोजन मिल जाती है, बट ऑक्सीजन भी तो मिलती है ना इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो. ठीक है ना. किताब में बेसिक साइंस तो ये लिखी हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ओके, एंड ऑक्सीजन तो डबल है, नहीं, हाइड्रोजन डबल है. ओके, बट मास वाइज बहुत ज़्यादा है. तो आप 1 लीटर पानी लो तो उससे कितनी हाइड्रोजन मिलेगी? 1 लीटर पानी से कितनी हाइड्रोजन मिलेगी? करीब मिलेगी 100 ग्राम. ओके,
कैसे? H2O का कैलकुलेशन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया, 18 में से हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो 2/18 कर दिया तो 1/9, 1/9 इज समथिंग लाइक 11%, ठीक है। ओके, ठीक है। तो लगभग 100 ग्राम, 125 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी, बट इट्स वेरी लाइट। एवोगैड्रो लॉ से, एवोगैड्रो लॉ कहता है कि यदि इतना ग्राम हाइड्रोजन हो तो 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। ओके, अब उसको बर्न करोगे तो जो एनर्जी मिलेगी वो भी पर यूनिट ग्राम ही होती है, ठीक है। तो जब पेट्रोल जलाते हो तो पर ग्राम काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, हाइड्रोजन जलाओगे तो एनर्जी थोड़ी सी मिलेगी, राइट, पर ग्राम। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ ए एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? इसकी जो कैलोरी वैल्यू है, ठीक है ना, यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाई, ठीक है, तो करीब 34 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, जबकि 1 ग्राम पेट्रोल से खाली 10-12 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मिट्टी के तेल से तो इट्स ओनली 5-6 किलो कैलोरी। ओके, सो देयरफॉर वी से हाइड्रोजन फ्यूल इज रिच, वेरी रिच, बेस्ट फ्यूल। अब हाइड्रोजन बर्न करता है तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, तो निकलेगा क्या? पानी। तो यदि हाइड्रोजन बर्न करो गाड़ी में, ओके, तो अल्टीमेटली क्या निकलता है? पानी, H2O। ओके, उसको आप पी सकते हो। इसलिए लोग बाग हाइड्रोजन की गाड़ी चलाना चाहते हैं, बिकॉज आप यदि डीजल की गाड़ी चल रही है तो उसके पीछे आप गाड़ी चलाना नहीं चाहते हो, बिकॉज काला धुआं निकलता है, लॉट ऑफ एग्जॉस्ट, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो सारी गैसेस निकलती है। बट हाइड्रोजन की गाड़ी में वो नहीं निकलती। तो हाइड्रोजन आएगी कहाँ से? दिस वाज द कंसेप्ट। हाइड्रोजन गैस सिलेंडर लाओ बाजार से। तो गैस सिलेंडर जो हाइड्रोजन का है, एलपीजी का गैस सिलेंडर पता है आपको? 15 किलो का आता है खाली, और उसमें 15 किलो एलपीजी आती है, तो भरा हुआ सिलेंडर 30 किलो का आता है, ठीक है ना। तो उसकी डेंसिटी लगभग कितनी होगी वो आप निकाल लो, ठीक है ना। और इसी तरह से यदि खाली सिलेंडर जो इतना बड़ा आता है, ऑक्सीजन का ले लो या हाइड्रोजन का ले लो, उसका वजन आता है 40 किलो, एक आदमी से नहीं उठता, ठीक है ना। और उसमें जब गैस भर के आती है ठलाठल एट 3000 PSI, तो उसका वजन खाली 42 किलो होता है, 2 किलो ही आती है, ठीक है ना। ओके, दैट इज द डिफरेंस। द डेंसिटी ऑफ पैकिंग ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लो। वी कैनॉट हैव हाइड्रोजन फील्ड। आप CNG की गाड़ी चलाते होगे, तो CNG इज़ ए कम्पैक्टिफाइड नेचुरल गैस, ठीक है ना। ये 3-4 किलो ही माती होगी आपकी गाड़ी में। कितनी माती है? इसकी डेंसिटी बहुत कम है, 7 किलो आती है, जबकि एलपीजी ज़्यादा आती है, बिकॉज इससे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो करीब 35-40 किलो आ जाती है। 12 किलो के सिलेंडर में 8 किलो तक मैक्सिमम भर सकते हैं। 12 किलो सिलेंडर बोलते हैं वो। हाँ, 8 किलो तो 12 किलो कैपेसिटी है, बट उसका वॉल्यूम देखो, 205 पर जा रहे हैं। उसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम तो उसका 50 लीटर है, ठीक है ना। तो 50 लीटर का वॉल्यूम में पेट्रोल तो 50 लीटर आ जाता है, और फट से उसका वजन कितना हो जाएगा? उसकी डेंसिटी 0.7 है, 0.8 है, तो लगभग 50 किलो हो जाएगा। बट एलपीजी का सिलेंडर, मैंने एग्जांपल दिया 15 किलो का खाली सिलेंडर, और उसमें 15 किलो गैस आ जाती है, ठीक है ना। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल का जो सिलेंडर है वो 2 किलो का, और उसमें गैस कितनी आती है? पेट्रोल भरते हैं उसमें, ठीक है ना। उसमें कम से कम नहीं तो 5 किलो पेट्रोल भर देते हैं, 6-7 लीटर पेट्रोल में आ जाता है, ठीक है ना। So the density, relative density of a container versus the fuel is very poor for hydrogen. Okay? तो हाइड्रोजन की व्हीकल चलाओ तो इतना भारी, बहुत सारे तो सिलेंडर रखने पड़ेंगे, तो उनको घसीटो कि फ्यूल आपको घसीटेगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट। ओके, इसलिए हाइड्रोजन व्हीकल सक्सेसफुल अभी तक नहीं है। अब सक्सेसफुल क्यों हो रही है? ठीक है ना, क्योंकि वो जो स्टोरेज टैंक है ना हाइड्रोजन के, वो इनोवेट कर दिए, ठीक है ना। लिथियम के अंदर हाइड्रोजन मिला के लिथियम हाइड्राइड
आपको पैक करके दिया, ठीक है ना। तो एक लिथियम का वजन यदि 6 ग्राम है, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये जब हाइड्राइड बनता है, ओके, तो 6 पॉइंट समथिंग हो गया ना, तो दैट्स ए एडवांटेज। लिथियम कॉम्पैक्ट रहता है एंड इतनी सारी वो हाइड्रोजन उसमें एब्सॉर्ब कर सकता है, ओके। सो द पैकिंग डेंसिटी हैज इम्प्रूव्ड, सो यू कैन टेक हाइड्रोजन नाउ अंडर द नीथ ऑफ योर कार, ठीक है। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी है। दूसरी टेक्नोलॉजी है कि आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बैटरी रखो और बैटरी से हाइड्रोजन जनरेट करो, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, एवरीबॉडी नोज। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ऑक्सीजन भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया है ऑक्सीजन मास्क। यदि आप वेंटिलेटर है तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, अभी कोविड के टाइम सब जगह ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया काम है। हाइड्रोजन की गाड़ी, उसका ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, वो आप यूज़ करो, बट रोज़ थोड़ी चाहिए आपको वेंटिलेशन। हवा में बहुत ऑक्सीजन है, इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ठीक है ना। वी डोंट नीड इट टू मच ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन शुड बी बरीड समवेयर व्हेन वी प्रोड्यूस हाइड्रोजन, एंड दैट इज़ व्हाट वी डिड इट, वी ट्राइड इट। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करते समय एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। तो OH आयन जब एल्यूमिनियम के पास जाता है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है खट से, ओके, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, हो नहीं, और थोड़ा सा पानी मिल्की हो जाता है, कोई बात नहीं, एंड प्योर हाइड्रोजन was available. So we developed that kit, okay, but उस किट से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई उससे गाड़ी का तो धक्का भी नहीं लगता, ठीक है ना। तो व्हाट वी ट्राइड, एक कन्वेंशनल फ्यूल जैसे LPG है उसके साथ हाइड्रोजन मिक्स की, उसको बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटालिटिक कन्वर्टर की ज़रूरत समझी एंड BS1, BS2, BS3 टेक्नोलॉजी अप्रूव की। व्हाट आर दीज BS1, BS2, BS3? कुछ मालूम है? नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। कि जो साइलेंसर है उस साइलेंसर में एक ढोलकी लगानी पड़ेगी आपको एडिशनल, दैट इज कॉल्ड फिल्टर, विच एब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट गैसेस, ओके, और फिल्टर करके बाहर दे दे, ठीक है ना। तो कितना बढ़िया फिल्टर लगाओगे, ठीक है ना, उतना ही इंजन पे लोड पड़ेगा, ठीक है ना, यदि प्योर हवा देनी है तो एट द कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं वो कम से कम पोल्यूशन देती है, ओके। एंड साइलेंसर के टेल एंड के ऊपर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, फिल्टर किट लगाई जाती है, ठीक है ना। तो जब अब पेटेंट की बात की या कॉपीराइट की बात की कि हाउ योर टेक्नोलॉजी डिफरेंट, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, वी आर फीडिंग द कैटालिटिक फ्यूल एट दी इंजेक्शन पॉइंट। तो गाड़ी हवा भी लेती है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी ले ले, तो वट एवर इज द कन्वेंशनल फ्यूल दैट कैन बर्न वेरी वेल, वेरी एफिशिएंटली, ओके, एंड एग्जॉस्ट गिव्स यू अ पॉल्यूशन फ्री। तो हमारी व्हीकल एक पॉल्यूशन फ्री व्हीकल के नाम से पेटेंट हुई, ओके। और वो जो टेक्नोलॉजी है वो 2011 की है, प्रैक्टिस्ड 1985 में हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट मिला था हम लोग को राजस्थान यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड द फाइनल रिजल्ट हाइड्रोजन से जो भी काम किया, पब्लिकेशन तो बहुत सारे कर लिए, ठीक है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएंगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में, बट जो पेटेंट है वो हुआ है 2023 में अवार्ड, अभी recent, yes, okay, January. So now we can talk about that we are having a indigenous technology which is developed within India, okay, which is well accepted, well patented. Now we are looking for an entrepreneur, ठीक है ना। तो टेस्ला वाला बंदा यदि आए हमसे बात करे तो ये टेक्नोलॉजी ले ले, तो इन प्लेस ऑफ लॉन्चिंग
टाटा तो बाटा मारता है, नहीं टाटा यहाँ काम नहीं करता, टाटा टेक्नोलॉजी बाहर से, हाँ बाहर से लेता है। तो वी आर लुकिंग फॉर टाटा अमंग्स आवर न्यू जनरेशन। ओके, टाटा भी तो पुराना हो गया ना, वो तो 70-80 के ऊपर निकल गए, तो उनमें होप नहीं है। अभी होप है न्यू जनरेशन, जो अभी 22-25 के लोग होंगे ना, वो यदि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ठीक है ना, तो वो वेल प्रूफ, मालिक पुराना हुआ है, कर्मचारी तो नए ही है। वो सब घिसे पिट है, ठीक है ना। वो हमने ट्राई कर लिया, महिंद्रा को ट्राई कर लिया, ठीक है ना। और इंडियन और कौन सी है? तो इनको टैक्स लगा ही लेना। तो टेस्ला को देंगे, टेस्ला इंडियन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं जो शेयर करूँगा राइट नाउ ओनली वन पिक्चर। Only 2 pictures I will share. यहाँ वाईफाई चल जाएगा क्या? हॉटस्पॉट चलाऊँ? One thing more I want to add here. Yeah, Say please. you can use hydroelectric system that is developed by NPL. Can it be possible? Hydroelectric system that is developed by NPL. Hydroelectric, Hydroelectric system. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, Electric cell. हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल, वो क्या चीज़ है आप बताओ? सेल के ऊपर पानी स्प्रिंकल करके आपको करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, सेल के ऊपर पानी छिड़केंगे, तो फिर हाइड्रोजन कैसे कलेक्ट करेंगे? It will replace that cell set of replace हाँ, तो वो दरअसल अभी टेक्नोलॉजी आई डोंट नो एस्टेब्लिश है या नहीं, बट ये टेक्नोलॉजी जो मैं, अच्छा अभी आई नहीं है। ओके, ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। जो पानी से चलती है, ये गाड़ी है हमारे पास है, अभी भी है, इसके अंदर जो किट लगी हुई है वो भी है, और भी बना सकते हैं, एंड इट इज़ इन डिमांड नाउ। क्यों डिमांड में है? बिकॉज आई एम एकेडमिक पर्सन, ठीक है ना, एकेडमिक मार्केटिंग करते हैं, इसकी वैल्यू बताते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू। ओके, जो किट है वो यदि 1 एम्पियर से यदि 10 सीसी हाइड्रोजन जनरेट करती है, तो इट इज़ क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। 1 मिनट में, यदि 2 मिनट में 20 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी, 5 मिनट में करेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो द एपरेटस और द किट इज़ क्वांटिटेटिव, एंड आज की डेट में ऑल इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन में एवोगैड्रो नंबर के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है। एवोगैड्रो नंबर पता है क्या आपको? क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। ये लॉन्ग बैक डिस्कवर्ड है, ठीक है ना, सारी केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है, बट अभी भी लेबोरेटरी में एवोगैड्रो नंबर पे कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है। यूजिंग दिस किट यू कैन डू द क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द एवोगैड्रो नंबर। करंट मेजरमेंट इजी है, ठीक है ना। 1 एम्पियर के अंदर 10⁻18 नंबर ऑफ आयन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। 1 एम्पियर जब करंट फ्लो होती है ना, तो 10⁻18 नंबर ऑफ आयन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये कहाँ से आया?
1/E से कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो वन कैन एस्टिमेट कि 1 मिनट में कितने आयन गए, ठीक है ना, और 10 मिनट में कितने गए, और इतने आयन यदि रिकम्बाइन हुए तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का जनरेट हुआ, ठीक है ना। 1 ग्राम मोल यदि जनरेट हो गया तो उसमें 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। सो एवरी पैरामीटर इज मेजरेबल। ओके, तो यूजिंग सच किट, यदि आपको हाइड्रोजन गाड़ी नहीं चलानी है तो एटलीस्ट लोगों के दिमाग तो चालू कर रख सकते हो आप। ओके, दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एवोगेड्रो नंबर, द फंडामेंटल साइंस विच इज हैपनिंग। ओके, करंट, वोल्टेज, नंबर ऑफ आयन, इनमें जो रिलेशनशिप है, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप। ओके, तो एक फेथ फंडामेंटल साइंस में स्टूडेंट्स में डेवलप होगा। आजकल के बच्चे विश्वास नहीं करते, ठीक है ना, कि इतनी सी गोली खाने से आपका बॉडी कैसे ठीक होती है, इतने मिलीग्राम क्यों खाऊं, 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम क्यों नहीं खाऊं। ओके, ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स है, राइट, छोटी सी इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुँचती है, आपके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और कितनी सी मेडिसिन आपके लिए वो यूज़फुल होती है, ठीक है ना, ऑल दिस इज़ क्वांटिटेटिव। ओके, और बिलीव मी, आने वाले टाइम में एआई आपका शक्ल देख के, फोटो देख के एज भी बता देंगी कि इतने साल तक आपका सिस्टम काम करेगा, अभी भी बता देती है। ओके, सो वी हैव टू बिलीव ऑन द टेक्नोलॉजी, वी हैव टू बिलीव ऑन द क्वांटिटेटिव साइंस, और जो हम यहाँ बता रहे हैं, वी हैव टू बिलीव कि ये जो किट है डिज़ाइन डेवलप की हुई, इसमें ये सब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका पेटेंट बताता हूँ आपको, उसमें डेट वगैरह जो लिखी हुई है, पेटेंट बताऊँ सर, इसकी किट में कितने हाइड्रोजन? इसमें ये डिटेल नेट पे अवेलेबल है, ठीक है ना। कई बार कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें पूछा, ठीक है ना। हाँ, बैटरी, यस, इसका जो जवाब है वो ये है कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, उस समय बैटरी कंज्यूम करते हो, और वंस इट इज स्टार्ट तो बैटरी कंज्यूम नहीं करते, और उल्टी बैटरी चार्ज होती रहती है। ओके, तो वो जो सरप्लस एनर्जी है जो डायनमो से जनरेट हो रही है, उससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हो ऑन बोर्ड। एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा, डायनमो की एनर्जी प्रोड्यूस वेल, इसमें जो फ़ायदा होता है वो ये है कि थोड़े से फ्यूल से आप मोटर चला रहे हो और आपका डायनमो चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली पैदा हो रही है। मतलब हमने थोड़ी सी ऊर्जा दी, उससे बहुत सारी ऊर्जा पैदा कर दी। नहीं नहीं, फिर वो रिसाइकल होता है? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी नहीं है, बट वेस्ट है राइट नाउ, क्योंकि आप वो जो मिनिमम थ्रोटल जो चाहिए वो तो दे ही रहे हो, तो डायनमो तो गोल घूम ही रहा है और वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लेने पे और हाँ। आउटपुट हाइड्रोजन एनर्जी देने में, हाँ, का जो एनर्जी का रेशियो है, यानी उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, बिकॉज आप जब इंजन चलाते हो तो अनबर्न फ्यूल बाहर निकलता है, तो आपने जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की वाइल इलेक्ट्रिक आइडलिंग, ओके, वो हाइड्रोजन उसको कैटालिटिकली कन्वर्ट कर देती है इन दी बर्निंग, और उससे अल्टीमेटली गाड़ी घुर्राने लग जाती है, तेज जाने। जो ही हाइड्रोजन गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे जो लोड आया उसमें तो बैठेगी गाड़ी, ठीक है ना, बट जो ही हाइड्रोजन वापस आने लगी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आरपीएम वापस बढ़ जाता है गाड़ी का। ओके, आप ये दोनों स्विच आपके कंट्रोल में है, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग कर लो, प्रोड्यूस कर लो हाइड्रोजन, ठीक है ना, और प्रोड्यूस करके उसको इंजन में डाइवर्ट कर लो। सो देयर आर सोलेनॉइड स्विचेस विच यू कैन कंट्रोल फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो पहले आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना। ये जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है जो ये सवाल कर रहे हैं, आजकल हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक यूज़ किए जाते हैं,
ठीक है ना। तो जो ही आप ब्रेक लगाते हो कुछ एनर्जी जनरेट होती है, वो वापस आपको व्हीकल में मिल जाती है, ठीक है ना। तो यू डोंट वेस्ट योर एनर्जी। ओके, तो आपका जो सवाल है वो एनर्जी बैलेंस का, दैट्स राइट, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाया तो यही गया है कि एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लॉस नहीं कर सकते, बट ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, ठीक है ना, मेजरेबल, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। जैसे आपने 90% एफिशिएंसी या 80% एफिशिएंसी से कोई मशीन चला रहे हो, विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। 20% तो वेस्ट कर ही रहे हो ना, तो इसका 80% से यदि आपने 90% कर दिया तो दैट्स योर कंट्रीब्यूशन। ओके, टेस्ला वाली की सीधा बिजली से चलती है, वो जो 20% का लॉस हुआ है, हाँ, हाइड्रोजन कन्वर्जन में जो 20% का लॉस हुआ, वो लॉस बच जाता है। वो लॉस बच जाता है, यस करेक्ट। सर पेटेंट निकाल। ओके, सो दिस इज ए पेटेंट। इसमें डेट सीक्वेंस पढ़ने में आ रही क्या? दिस वाज फाइल्ड इन दिल्ली ऑफिस 1900 लिखा हुआ है 12 में 2012, एंड इट वाज अवार्डेड, कब अवार्ड हुआ है? 23। ओके, तो 11 साल दिल्ली के ऑफिस में रहा है पेटेंट, पता नहीं क्या करते रहे ये लोग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ ना, गुड, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है ना, IPR, ओके। तो आपको भी यदि कहीं एवोगेड्रो नंबर का एक्सपेरिमेंट लगाना है तो आप याद कीजिए, ठीक है ना। इस तरह की किट हम बना के दे देंगे, कॉलेज के लिए देंगे। सर अभी जो आप कार चला रहे हैं उसमें लगा हुआ है? वो हमारे पास है, अब लगाया हुआ है क्या, हमारी मर्जी है। हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं, तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं हमारी मर्जी है ना। नहीं, मतलब आप अभी हाइड्रोजन वाली गाड़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वाली? पेट्रोल वाली यूज़ करें, हम आप लोगों के साथ ही हैं, अलग नहीं है, ठीक है। सर आपने ओके, एफिशिएंसी में करीब 15%, बट द एडवांटेज इज पोल्यूशन इज 0। ओके, तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर एनवायरनमेंट। जो हमारी गाड़ी करीब 12%, 10% अनबर्न फ्यूल निकालती थी, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट 0 निकालती है नाउ। सो द एफिशिएंसी इज 100%। एंड द सेम पैटर्न इंडियन ऑयल कंपनी जो फरीदाबाद में ऑफिस है, वो मार्केट करती है हाइड्रोजन को ब्लेंड करके इन CNG, ओके, बिकॉज हम उस प्रोजेक्ट में भी जुड़े हुए थे। आई वॉज इन्वाइटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द प्रोजेक्ट, एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि हाइड्रोजन को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो, उसमें ब्लेंड करके, ठीक है ना। तो जो CNG आती है, कन्वेंशनल CNG, उसमें हाइड्रोजन ब्लेंड कर देते हैं 10% वहीं से बना के सिलेंडर की, ऑलराइट, एंड दैट इज़ व्हाट इज सप्लाइड, ठीक है। तो वो कैसे मिक्स कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल मिक्स कर रहे हैं फ्यूल में ब्लेंड करके, जैसे मोटरसाइकिल में आप डालते हो पेट्रोल के साथ थोड़ा लुब्रिकेंट डालते हो ना, वो उस तरह से फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। एंड व्हाट वी एडवोकेट इज इट्स ए कैटालिटिक फ्यूल किट विच इज़ देयर ऑन बोर्ड, एंड सेफ्टी एस्पेक्ट इज देयर। बटन आपके पास है, जब मर्जी हो तब हाइड्रोजन जलाओ, जब मर्जी हो तो हाइड्रोजन मत जलाओ। जैसे धूम पिक्चर देखी है आप लोगों ने, ओके, मोटरसाइकिल चलाने वाले एक छोटा सा सिलेंडर और रखते हैं, जब पीछे से चोर आया, पुलिस वाला आया, तो वो सिलेंडर को जलाया और आपकी स्पीड 300 हो जाती। ओके, सो दैट्स दी टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑफ कोर्स इमेजिनेटिव, बट ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। नहीं देती, 0 अभी मार्केट में कब तक आएगा? हाँ, मार्केट में कब तक आ पाएगा? अरे जब तक पेट्रोल में ब्लेंड नहीं कर रहे हम LPG में ब्लेंड कर रहे हैं इसको, LPG में ब्लेंड, LPG बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज नहीं, वो हमारे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है,
उस समय का अंडर कंट्रोल नहीं करते। अंडर कंट्रोल नहीं करता। बैटरी कौन सी यूज करी है? बैटरी तो एक्साइड की बैटरी है, लेड लेड वाली कन्वेंशनल बैटरी। लेड हैवी मेटल है, उस बैटरी को बनाने में जो उसकी प्रोसेस के दौरान हैवी मेटल निकलते हैं। हाँ, तो वो नहीं, वो तो चेंज किया ही नहीं है, वो तो स्ट्रक्चर ऐसा है। दिस इज अ एडिशनल किट। एडिशनल किट इज जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द टेल एंड जो किट लगाते हैं फॉर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। सो दिस हैज टू इफेक्ट, एक तो कैटालिटिक कन्वर्टर, तो कैटालिटिक कन्वर्टर एट टेल एंड या एट फ्रंट एंड, वो डिफरेंस है। तो ये टेक्नोलॉजी ए लिटिल डिफरेंट है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। जो अंडर कंट्रोल पॉल्यूशन निकल रहा है इसके साथ में, हाँ। एलपीजी जलाने से हाइड्रोजन की तरह डायरेक्ट बैटरी से ही चार्ज होते हैं, पेट्रोल को साइड कर दें तो इतना भी बंद हो जाएगा। डायरेक्ट बैटरी से नहीं चलता। हाँ, यू नीड सम केमिकल, बिकॉज वो जब सारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, एयर से तो हवा ले रहा है और पेट्रोल इधर से जा रहा है और स्पार्क इग्निशन के लिए, तो वो सिस्टम ऐसा कैसा ही है, ठीक है ना। तो एयर से जो हवा ले रहा है उसमें आप हाइड्रोजन ब्लेंड करते हैं, वो कन्वेंशनल फ्यूल के साथ मिक्स हो जाता है एंड देन द एफिशिएंसी इम्प्रूव्स। सो देयर इज़ नॉट मच अल्टरेशन इन द कन्वेंशनल इंजन, ओके। क्योंकि और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है कन्वेंशनल इंजन, दैट्स द एडवांटेज, ओके। तो well, what I am saying is only the academic part of it, and replying as a teacher, ठीक है ना, as a industrialist नहीं रिप्लाई कर रहा, ओके, और एज ए इन्वेंटर भी नहीं, एज ए टीचर। इन्वेंटर होता तो मैं छुपा के रखता है ना इसको, कहीं क्यों दिखाता, ओके। बट एज ए टीचर वट एवर यू हैव डन, यू आर रेडी टू शेयर द नेक्स्ट जनरेशन। नहीं तो वो सब अपने साथ जाएगी ना। Who will read all this? या तो आप बेचो इसको, ठीक है ना, और पैसे का भी क्या करना है, ओके, ठीक है। तो वो पैसा बेसिकली सोसाइटी में काम में आना चाहिए। टेक्नोलॉजी यदि यूज़फुल है, किसी को समझ में आता है, वो मार्केटिंग कर सकता है, तो वो काम में आएगा सोसाइटी। हाँ, इन बिटवीन की, बट अब अभी नहीं की, जब ये पेटेंट मिला उसके बाद। बाकी कहते हैं कि हम तो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेड, वी डोंट वांट टू हैव इंडिजिनस, ओके। तो वो ट्रस्ट वर्दी जो बात होती है ना, हाँ, ओके। तो ये ट्रस्ट जनरेशन को लेना पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन को, ओके। बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलराइट। तो ये अभी पहले तो था, लोग बाग इंडियन साइंटिस्ट पे बिलीव करते थे, ठीक है ना, अपनी टेक्नोलॉजी पे उसी हिसाब से खर्च करते थे। अब आजकल तो सब बाहर की टेक्नोलॉजी, सब चीज़ इंपोर्ट कर लो, ठीक है ना, तो कब तक चलेगा। तो एज ए टीचर वी हैव टू लुक फॉर द चेंजेस इन आवर एजुकेशन, ओके। यदि आप माइंडसेट लोगों को चेंज कर दोगे, ठीक है ना, उनको पढ़ा के, सिखा के, समझा के, विथ कॉन्फिडेंस, तो आपको आने वाले टाइम में चेंजेस नज़र आएंगे, ओके, ऑलराइट। सो थैंक यू। हमारे साथ जो फ्रेंड हैं आज, योगेश जी आइए, और पूनम जी, ये लोग इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के हमारे फ्रेंड हैं, और ये जो रीजनल काउंसिल है RC1, ओके, जो दिल्ली और हरियाणा के फिजिक्स टीचर्स को या उनकी नीड को कैटर करती है, ठीक है ना, उसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर योगेश एंड पूनम। Most of us know each other very well, and I'm very happy to see our senior colleague Sangeeta ma'am यहाँ पे बैठी हुई है। तो I hope that you have enjoyed a lot and learned many things from all these innovative experiments. और सबने अभी 54 सेंटर ऑल ओवर इंडिया इस्टेब्लिश किए हैं, एंड नाउ वी आर प्लानिंग दैट हमारा एक दिल्ली में भी एक इनोवेशन हब बने। तो उसी की एक मीटिंग थी आज,
वो तैयारी चल रही है। उसी की तैयारी अभी हम कर रहे हैं कि हमारा सेंट्रलाइज इनोवेशन हब बने, जो हमारे टीयू जितनी भी कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स को उनसे बेनिफिट मिले। तो होपफुली मतलब वो हम जल्दी लॉन्च करेंगे। और आप आई थिंक सुखविंदर सर हैं, तो सर आपका एक एक्सपेरिमेंट मतलब 3D प्रिंटर वेट कर रहा है आपका रिसर्च कॉलेज में, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम मतलब जो भी हमारे इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट तो लेकर जाते हैं लेकिन कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे जो भी आप चीज़ लर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग होगी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। यही मुझे कहना है कि भाई हम जल्दी जल्दी इसको ओपन कर सकें, अपना एक इनोवेशन हम बना सकें और वहाँ पे आप लोगों को उसमें इंगेज करें और उसका मेंबर भी बनाएं। थैंक यू। IIPT का मेंबर बनाने के लिए वो साइट जैसे सर ने बोला, हम सब एक दूसरे को जानते हैं सिंस रेगुलर से हम आप लोग विजिट करें तो बहुत सारे लोग मेरे होंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी हैप्पी टू सी द न्यू फेसेस हु आर हैविंग द स्पार्क इन देयर माइंड एंड दे वांट। हेलो। सी फ्रेंड्स, हाँ जी। something is very important in today's scenario. We know everything. You people know more than us. But the बाहर thing खड़े हो, is, ठीक we are not है। able मैं to अभी give a गाड़ी वहीं single भेजता piece to हूँ, our उसमें रखवा Our दीजिएगा, students are ठीक है। having the spark, but they are not having the plan. ओके, वहीं Honestly भेजता हूँ, speaking, ठीक। There are so many students, they are not having the plan. हाँ, बाहर ही खड़े to हो, show अभी their capabilities, to show their abilities. So what we have to do, we have to take them on this side. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताया। 10 रुपए की बॉल और आपके पास एक छोटा सा रिंग मैग्नेट, आपने 2 मिनट में BCC स्ट्रक्चर अपने सामने देखा, उसको फटाफट BCC से आपने FCC में चेंज किया, FCC से आपने बहुत सारी चीज़ें की और उसी से और बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। आई एम प्रिविलेज, आई एम अ पार्ट ऑफ IIPT RC1, आई एम द एग्जीक्यूटिव मेंबर right now, and hopefully most of you have seen my post. I used to post the lectures by the eminent professors, usually on the groups of physicists, usually via mail, via WhatsApp. जो नॉन कलीग्स हैं उनको तो मैं पर्सनल भी भेज देती हूँ। तो what I feel कि you people have to join IIPT RC1. This is my feeling. Why I am saying so? Because we are connected to such kind of eminent speakers, such kind of eminent innovators, so that you also connect with them. You have the spark, I know. You just discuss with him. He will give you the platform. He will give you the technician to implement your spark. Believe me friends, you will have fun. I'm sure till now you all have the fun. ठीक है, सबको सब कुछ आता है, आई नो यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन योर फील्ड, फिर भी हमें कहीं ना कुछ लर्निंग मिल ही जाती है। ऑलवेज वी ऑलवेज लर्न। दिस इज 5th वर्कशॉप विद द सर, विद द YK Vijay sir. दिस इज माई 5th वर्कशॉप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एवरी टाइम समथिंग न्यू आई लर्न फ्रॉम। और चलते चलते बता देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो खड़े खड़े लंच पे ही पता लग जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, बिलीव मी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग IIPT RC1 से जुड़िए। दैट्स एब्सोल्युटली योर डिस्क्रिशनरी डिसीजन। यू वांट, यू गो अहेड, यू डोंट वांट, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट काइंड ऑफ फोर्स, बट seriously you will feel in a long run you have done a good job by joining IIPT RC1, because we have a lot of activities day by day, week by week, month by month. ठीक है, on an average in a year we have almost 20 to 25 activities other than the syllabus, the curriculum, the classes which we are taking. उसके अलावा 20 से 25 एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं एक साथ, कराना और करना दोनों, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो ये आप ही के बेनिफिट के लिए द डिटेल्स अबाउट IIPT RC1 आई विल शेयर विद द दौलत राम टीम, right? So they will share with you people, because I don't have the personal number with all of you. Those who are member, well and good. Those who are not, please go ahead. It's not very much cost, मतलब it's not a high cost. It's only $2,000 for a lifetime membership. It's not annual membership, monthly membership, nothing like that. You will have the booklets every time, whatever activities are going on, not in RC1, Delhi and Haryana. Even we have 34 RCs, and in all the regions, whatever going on, you have that, the knowledge of that. You will have the notification of each RCs, what activities other RCs are going to do in the future,
or it's doing right now, or maybe they have done in the past. Okay, so all these information you will definitely have. Right now I don't have the form with me because I was here for the meeting, not for this workshop. Sir has invited me, so it's my pleasure. I am here to to tell you about the activities of IAPT RC1. Just go ahead. I will share all the details with the Daulatram team, and then you can they will forward to you people. So you can take the membership. You have to just fill the form. Online procedure is there for the payment. You can go ahead with the online procedure, and after the payment you will get your certificate via WhatsApp as well as you will have that via registered post on your mail address, whatever postal address you will provide. Okay, so this is all from my side, but there is no doubt about IAPT, Indian Association of Physics Teacher, not RC1. I am not specifically saying RC1. Whole IAPT is putting so much effort to innovate the teachers as well as the students. So friends, come forward, join hand with hand, and let's innovate our students so that we have a very good future now on. Thank you so much. So next आइडिया इज आपको कॉलेज के टीचर्स तो मिलेंगे ही, नेशनल लेवल के सारे टीचर्स मिल जाएंगे. ओके, whosoever is a member of IAPT, ठीक है, you can connect, you can talk to them, you can share your experience और share their experience. ओके, आपको लिखना क्या है, इंड IAPT लिखिए अपने मोबाइल में एंड जस्ट ब्राउज इट. मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको खोल के देखने. खुल जाती है. IAPT.org.in. The website is IAPT.org.in. तो इसमें मेंबरशिप लेनी है तो 2,500 रुपया लाइफ मेंबरशिप के लिए है. यू कैन फिल द फॉर्म, मेक पेमेंट ऑनलाइन. ओके, गेट अ रिसीप्ट, एवरीथिंग विल बी डन. ईमेल, फ़ोन नंबर, कॉलेज का नाम वो डालना है. ये वाला डेमोन्स्ट्रेट हो गया था, देख लियो. आपने पहले कहीं देखा हुआ है या पहली बार देखा? हुआ नहीं? ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉय. ठीक है, वो क्या रहा है, इसमें ये बैंगल है, ठीक है, एंड दीज बैंगल्स आर ऑफ एल्यूमिनियम, विच इज अ मेटल, एंड इट्स अ नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नहीं. ओके, तो जो हमने शुरू में अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस की बात की, ठीक है ना, तो परमानेंट मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है एंड रिपल्शन भी होता है. यू सीन दैट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दिखाना है. तो दिस अट्रैक्शन अगेन, दिस इज रिपल्शन. ओके, इट्स फ्लोटिंग. ठीक है, तो ये बैंगल जब यहाँ करंट फ्लो होती है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, तभी तो बल्ब जला ना, तो इसमें पुश लगा. दैट पुश इज ट्राइंग टू लिफ्ट, फोर्स ऑफ रिपल्शन है. ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ठीक है ना, वो तो अट्रैक्ट कर रही है, बट दिस इज सम फोर्स विच इज पुलिंग. और ये फोर्स क्या हो सकता है, ओनली मैग्नेटिक, ठीक है ना, रिपल्शन के लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉर्मली फ्रिक्शन के अंदर चार्ज जो डेवलप होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है. ओके, एंड मैग्नेटिक है. इसको हम कंफर्म कैसे करें मैग्नेटिक है या नहीं, तो ये है ना, मैग्नेट है ना, इसको इसके पास लाते हैं. क्या हो रहा है, वाइब्रेशन, ठीक है, यू आर फीलिंग द वाइब्रेशन. तो मैग्नेट में वाइब्रेशन क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है. एंड सही है, बिकॉज दिस इज जस्ट ए कॉइल,
इस बल्ब के साथ एक कॉइल लगी हुई है, तो बल्ब में एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कॉइल में भी एसी करंट है। देयरफॉर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ उस तरह से हो रहा है। ओके, इट्स ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें यदि आप कंडक्टर रखो तो उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें मैग्नेट जनरेट होगा, ठीक है। और ये मैग्नेट इस कॉइल के मैग्नेट से रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज जो जनरेट होता है वो कॉज से अपोजिट होता है, दैट इज द लेंजेस लॉ, ठीक है ना। ओके, सो ऑल फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो एक एपरेटस में समाये हुए हैं, दे आर इंक्लूसिव, और सारे आप इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, ठीक है ना। एंड ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसलिए करते हैं कि गर्म नहीं हो ये, ठीक है ना। लगातार ऑन कर दिया तो गर्म होएगा, ठीक है ना। ये गर्म होएगा बिकॉज इट्स अल्टरनेटिंग करंट, और इसी को हम एडी करंट्स बोलते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों गर्म होता है? बिकॉज वो मैग्नेटिज्म प्लस माइनस मैग्नेटिज्म बदलता रहता है नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, करंट फ्लो होती है तो। और वो जो इंडक्शन करंट होती है उन्हीं को हम एडी करंट्स बोलते हैं, ठीक है ना, विच फ्लोज ऑल अराउंड। ओके, ठीक है। तो इवन बीइंग अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, उसके अंदर यदि फ्लक्स चेंज होता है तो करंट जनरेट होती है, इट बिकम्स अ मैग्नेटिक। ओके, इट्स नॉट अ परमानेंट मैग्नेट बट इट इज इंस्टेंटेनियसली मैग्नेटिक। और इसी प्रिंसिपल पे मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स चलने वाली हैं, मैगलेव। ओके, तो मैगलेव में क्या परमानेंट मैग्नेट थोड़ी लगाएंगे हमारे जैसे, हैं, लिफ्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, नीचे कोयल होंगी, उनमें करंट होगी, और ऊपर भी कोयल होंगी व्हीकल के साथ, उनमें भी करंट होगी। और ये करंट और ये करंट एक तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ इंडक्शन होगा, और वो रिपेल करेंगी, और वो ट्रेन उठ जाएगी, ठीक है ना, ट्रैक पे। करेक्ट, बुलेट ट्रेन भी ऐसे ही चलेगी। हाइपरलूप ट्रेन का कंसेप्ट चल रहा है, वो प्रिंसिपल अलग है। वैक्यूम में ट्रेन चलेगी। जिसको पुश मिलेगा कहाँ से? रेगुलर में पुश और अच्छा, हॉरिजॉन्टल पुश कहाँ से मिलेगा? ओके, ठीक है। ये पंखे में पुश कहाँ से मिलता है? पंखे में पुश कहाँ से मिलता है? कभी सोचा? ये जो कॉइल लगी हुई है ना, कॉइल में जो ही करंट पास किया तो वो सीक्वेंस से लगी हुई हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो वो जो 1 2 3 है ना, उनमें रिलेटिव फेज चेंज है, ठीक है ना। तो पहले फोर्स लगता है, फिर अगले में लगता है, ठीक है, इसलिए वो रोटेट होती है। तो इन द सेम वे ऑन अ लीनियर, यदि आप कॉइल इस तरह से लगाते जाएं, ठीक है ना, कि फेज आपस में बदलता जाए, ठीक है ना, तो वो फॉरवर्ड ड्रैग मिलेगा। एक तो लिफ्ट मिलेगा, लिफ्ट तो आप देख रहे हो, बट फॉरवर्ड ड्रैग अभी नहीं दिख रहा है। बट नेक्स्ट टाइम जब अपन मिलेंगे तो आई विल ब्रिंग दैट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। बहुत सारी कॉइल लाएंगे, और जो ही एनर्जाइज करेंगे वो आगे दौड़ेगा, ठीक है ना। सर्टेनली माई माइंड इज़ वर्किंग ऑन दैट। ओके, आप भी पैरेलल काम कीजिए। कम फॉरवर्ड कैसे करना है? ये जो है ना पंखा, जहाँ पंखे की वाइंडिंग होती है उसके बाद जाओ, पंखे की वाइंडिंग कैसे होती है और वो कैसे लगाता है? आयरन के ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। तो आयरन के ब्लॉक इतने सारे लगाओ, आपने 1 मीटर में बहुत सारे आयरन के ब्लॉक लगा दिए, और एक कॉइल लगाई, फिर दूसरी कॉइल लगाई, फिर तीसरी लगाई, उनके सबके तार अलग निकालिए, फिर उनको 1 2 3 4 1 2 3 4 और जोड़ दिए। और जो है आप एनर्जाइज करोगे, इट विल प्रोवाइड द ड्रैग। ट्राई टू डेवलप दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विद द स्टूडेंट। यदि समझ में आ गया, यदि आपके कंट्रोल में आ गई चीज़, ठीक है ना, तो यू कैन कंट्रोल 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 एक इतनी बड़ी ट्रेन बना दोगे, डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे, तो आई एम रेडी टू पे यू 20,000 रुपीज़, ओके, एज ए IIPT ग्रांट फॉर टू डेवलप सच प्रोजेक्ट्स। ओके, तो टीचर्स यदि कोई प्रोजेक्ट डेवलप करता है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है IIPT कन्वेंशन,
अभी 7,000 तक की ग्रांट देते हैं। ओके, फर्स्ट प्राइज़ 5,000, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ कितनी है? 3,000 शायद, 3, 5 और 7। ओके, अप्लाई करने का तरीका बताओ ग्रांट के लिए, अरे बना के लाओ, पहले दिखाओ। ऐसे थोड़ी ग्रांट, ये सरकारी एजेंसी नहीं है बिना। ग्रांट नहीं मांगी तो अप्लाई करने का तरीका बताओ। अरे आइडिया दे दिया ना, प्रोजेक्ट बनाओ लेके आओ। बना रखे हैं सर, आप अप्लाई करने का तरीका बताएं। आप ये एक प्रोजेक्ट बना के ले आओ ना हमारे पास। एंड 20 बनाना Sir, whenever you have the innovative idea, you हाँ। directly write to the sir, this is one day. Yes. Let us listen to this. कॉन्टैक्ट डिटेल आप दे दीजिए। I will provide you, don't worry about that. अरे Today we have the regional आप office गूगल करो, in physics. गूगल करो YK विजय को। कॉन्टैक्ट डिटेल आप बस मुझे दे दीजिएगा, आपका ऑफिस That's what I'm saying. Whenever you have the member of कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दीजिए। मेरा contact number मैं दे देती हूँ। आप जब भी IAPT के मेंबर बनेंगे, you have all the details about all the Members. competitions, all the innovative experiments, all the lectures on this. So there is a regional council, innovative experimental physics. ये In that you बैलून वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया कि नहीं सर ने? नहीं दिखाया, just write down my contact. टाइम कम पड़ गया। 072 ये बैलून सबको चाहिए क्या? बैलून सबको चाहिए? Naturally organized. बिना फरीदा मैडम को तो लेने की Nambi? आप अपडेटेड नंबर को सारी डिटेल्स। सर ये बैलून दे दो जिसको चाहिए, ठीक है ना? और फुला के देखें। बैलून चाहिए आप लोगों को फुला के देखने के लिए? है वो बैलून सर के पास, मनोज जी के पास बैलून है। इसको फुला के देखिए कितनी ताकत लगती है फुलाने में, ठीक है? ओके, ताकत लगती है। सो सम प्रेशर is generated by the lung. Okay? खुला नहीं, नहीं। फूल जाता है। एक बार में कोशिश करो एक बार में फूले, ठीक है? बिलीव मी सब नए हैं। गुड, एक फोटो तो ले लो सर। गुड, फोटो ले लीजिए। कौन ले? गुड, कोई बात नहीं। और इसको दबा के भी देखो। यू फील प्रेशर? डू यू फील प्रेशर? ठीक है। और अभी खाली है, ठीक है? इट मीन्स देयर इज अ प्रेशर इनसाइड। अभी ये देखिए मेरे पास जो ये डिवाइस है, ये डिवाइस है 20 रुपए का, 20 नहीं 30 रुपए का होगा, ठीक है ना? एक तो टी है प्लास्टिक की, और एक ये पाइप है लेबलिंग पाइप, ठीक है ना? इस टी में एक साइड तो बैलून लगा दिया और एक साइड ये पाइप, और एक साइड से ब्लो कर सकते हो। यदि यहाँ से मैं ब्लो करता हूँ फूलता नहीं है, क्यों? हवा इधर निकल जाती है, ठीक है? इसको बंद करूं फूल जाती है, तो वापस हवा इधर निकलती है। तो व्हाट एवर इज द प्रेशर, द सेम प्रेशर आई फील इट हियर। तो जब मैं एक्सेस प्रेशर लगाता हूं ना यहाँ से, देन एयर कैन गो इनसाइड। करेक्ट?
अब इस बैलून के अंदर कितना प्रेशर है, हाउ मच इज द प्रेशर, कैन आई क्वांटिफाई? ओके, दैट इज द चैलेंज। एंड चैलेंज क्या है? कुछ नहीं है, ये क्या है? YouTube मैनोमीटर कहलाता है ये। What is a manometer? Manometer is a device to measure the pressure और pressure difference. Okay? Atmospheric pressure कैसे नापते हैं? How the atmospheric pressure is measured? ठीक है ना? एक कांच की ट्यूब लेते हैं, उसमें मरकरी भरते हैं, ठीक है ना, और उसको एक मरकरी ट्रे में उल्टा कर देते हैं। आपने कभी किया क्या ऐसा? नहीं किया ना, बिकॉज यू आर वेरी पुअर। ओके, आपकी सैलरी हो सकती है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, आपके पास गाड़ी हो सकती है 5-6 लाख की, बट यू कैन नॉट बाय मर्करी टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। करना भी नहीं चाहिए, ओपन एनवायरनमेंट क्योंकि पॉइजनस है। और मर्करी का अगर एक बूंद भी लैब में गिर जाता है तो इमीडिएटली करना चाहिए, बिकॉज वो वेपराइज होकर हाँ, ठीक है। तो अब देखो, ऐसे यदि मैनेजर बन गए, ऐसे यदि मैनेजर बन गए, ठीक है ना, और ऐसे IAS बन गए, तो बंटा डार करेंगे ना। ओके, अभी भी सर, अभी भी आप बताओ, बाजार में मरकरी मिलता कि नहीं? बाजार में मरकरी मिलता कि नहीं? क्या भाव मिलता है? क्या भाव मिलता है? मर्करी का व्यापार नहीं करता है। व्यापार नहीं, आप टीचर हो भाई। मैं मर्करी का सप्लायर भी नहीं हूँ, ना मेरी मर्करी की कोई डिमांड है, ना सप्लाई है। बट आप यदि साइंटिस्ट हो, मैं GS का टीचर नहीं हूँ, मैं भौतिकी का। अरे भौतिकी का वैज्ञानिक तो होता ही है। यू आर बोर्न साइंटिस्ट, यू आर बोर्न साइंटिस्ट। आपका फिजिक्स का ठप्पा लोगों ने लगा रखा आपके ऊपर। साइंटिस्ट हैं, हाँ, और नहीं है। यस, थैंक्स टू गूगल, ठीक है ना। ओके, पता है ना। तो आपके पास यदि 2200 रुपया हो तो 1 लीटर खरीद सकते हो, 1 किलो खरीद सकते हो। और 1 किलो कितनी बड़ी बोतल में आएगा ये बता दो? 1 किलो मरकरी क्यों? परफेक्ट। तो यही तो चीज़ें बतानी है आपको नेक्स्ट जनरेशन पे। आपको आती है, आपको तो आती है ना, आपको कहाँ से आई ये बताओ? ये चीज़ें किसी ने सिखाई ना, टीचर ने। तो यू शुड रिग्रेट और यू शुड थैंक। अक्सर समझ में नहीं आया मुझे तो जीवन में। हाँ, तो जब 10 बजे के बाद बैठ पे किताब लेके बैठते थे, उसमें दिमाग मारते थे, हाँ, तब समझ में आता था। समझ में आती थी। अच्छा, किताब से समझ में आते थे। हाँ, तो किताब इज योर गुरु। टीचर के साथ साथ अगर मैं नोटबुक पे लिख रहा हूँ, जो टीचर समझा रहा है वो मिस हो जाता है। टीचर का समझना है जो तो किताब तो टीचर ने लिखी है, वो तो किसी टीचर ने लिखी है। हाँ, वो टीचर ने लिखी है, लेकिन मैं बाद में लेक्चर मेथड की और सेल्फ स्टडी। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आपने ये तो फील तो कर लिया कि इस बैलून के अंदर एयर प्रेशर है, ठीक है ना। इस एयर प्रेशर को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, मरकरी की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। पानी से कर सकते हैं। किया है? कितना प्रेशर है बताओ फिर, क्या तो नहीं तो इधर आओ मेरे पास हैं। आप आओ तो सही इधर, तकलीफ करो, दिखा दूँ। कर रखा है। 6ठी साल की क्लास से 8वीं के दौरान मैंने किया है, तो इसको आप दोबारा से करके बताओ प्लीज़। क्लैप फॉर आवर टीचर। नहीं, मैं तो कर ही दूंगा। मैंने तो कर आपसे सीखने के लिए बैठे। नहीं, मैं देखो, जब मैं एक ज्वाइन करूँगा मैं भी करूँगा। देखो मैडम, ये क्या कह रहे हैं? ये पहले IIPT ज्वाइन करेंगे फिर करेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इट्स अ सेल्फ जनरेटेड इनिशिएटिव, ठीक है ना। आपने किया है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ योर फियर, ठीक है ना, कि करेंगे कि नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है ना। कुछ नहीं, क्या गड़बड़ होगी? मोटिवेशन 3 चीज़ों पे बनता है, नीड, इंसेंटिव, राइट। हाँ, इन 3 में से एक भी मिसिंग है, तो टीचर कभी
सकता। थोड़ा सा पानी मैंने खींच लिया सक्शन से, ठीक है ना, एंड खींच के, और यदि मैं इनको जोड़ूं, ठीक है, द एंड इज ओपन, द अदर एंड इज आल्सो ओपन, तो इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस इज अ मैनोमीटर, वाटर लेवल दोनों पे बराबर है, ठीक है, ओके, मीन्स दोनों साइड प्रेशर सेम है। अब यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा ना, हवा खुली हुई है, यहाँ मैं प्रेशर चेंज कर सकता हूँ, ओके। अभी लेवल बराबर है, ठीक है, मैं इसको पानी को फ्रीडम दे रहा हूँ कि ऊपर तक जा, ठीक है ना। मैं कितनी इसमें हवा डालूं, ठीक है ना, ओके। ये प्रेशर इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है। कितना? दिस इज द लेवल डिफरेंस। कैन यू रीड द लेवल डिफरेंस? एक लेवल तो ये रही, ठीक है, और दूसरी लेवल ये रही, ठीक है ना। इसको अपनी बिलात से नाप दो आपकी। यस, दिस इज व्हाट यू डू। 8 इंच है ना, आपका हाथ 8 इंच है, नहीं है? 8 इंच इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो SDG का फार्मूला तो सिखाते ही हो आप, उसमें लिख दो डेंसिटी इज 1, ओके, दैट इज द प्रेशर, ओके, ठीक है, इट्स मेजरेबल। तो आप बैलून तो ले लिया जिसमें प्रेशर मेजर करना है। अब आपको बनाना क्या है? एक टी और एक जॉइंट इसका, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल पाइप का। ये फ्लेक्सिबल पाइप भी 3 रुपये फुट बाजार में मिलता है। कहाँ मिलता है? सैनिटरी की दुकान पे, ठीक है ना, क्योंकि सब कारीगर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसका लेवलिंग पाइप 5 mm डायप का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कपलिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये डायमीटर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा पैकिंग लगा के फिर फिक्स करना पड़ेगा, एंड इट विल बी फिक्स्ड, एंड आपका मैनोमीटर बन गया। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट टू टीच अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ओके। एंड बिलीव मी, ऐसे कैसे ही आपकी गाड़ी का भी प्रेशर मेजर होता है, ठीक है ना। आपकी गाड़ी में कितना प्रेशर रहता है? 33, 35, उसकी यूनिट है PSI, पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। एक चीज इधर और जोरदार हो रही है, इधर जोरदार हो रही है। सरफेस वेव, इफ यू कैन शो। ये बता दिए? नहीं, मैंने बता दिया। और कौन सा रह गया? हाँ, फ्रिज वाला करना है। करा दो सर। हाँ, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही मेजर होता है आपका, ठीक है ना, ओके। एयर पंप पे मेरा लंग्स खराब भर पाए ना आसानी से, ठीक है ना। तो आपका ब्लड प्रेशर या जो कैपेसिटी है लंग्स की वो ठीक है, यू कैन इन्फ्लेट द बैलून। ये भी तो सुबह से टेक्निक खराब है, क्योंकि मैं भर नहीं पाई हूँ लंग्स में, मतलब टेक्निक हो सकती है ना, मुझे ना पता। नहीं,
वो थोड़ा सा एक्सटेंशन करोगे तो बढ़ जाएगा। लीकेज नहीं लंच रेडी है, ब्रेक फॉर लंच एंड देन कम अगेन। और अभी कंक्लूड मैडम आइलैंड कंक्लूड कैसे करेंगे, फिर 3 बजे हम निकलेंगे। अभी आफ्टरनून सेशन जाएगी उसकी। हाँ आई वो लोग रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, आप अपना ओपिनियन इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। आपने 5-6 घंटे खर्च किए हैं ना हमारे साथ, कल भी आज भी। हाँ नहीं वो रिकॉर्डिंग आज Please pay attention. First of all, thank you very much, sir, for giving us your valuable time. And we really enjoyed your experiments, and we learned the physics in a new way, innovative way. And hopefully we will also be able to implement this in our classes or labs. And so it changes our mind how to think about the experiment. You don't need high cost experiment to learn the physics actually. So you can learn the physics from the simple experiments also. This was the main thing which I liked a lot about these sessions. Simply available, commonly available. Yeah, commonly with the commonly used to design and develop experiments. Yeah. And thank you very much, sir, for opening our mind in this way, and so that we can think of the new innovations in in the future. Thank you very much. Thank you. जनरल नहीं, कोई स्पेसिफिक भी बोलना चाहें, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो आपको आउट ऑफ द वे लगा, ये हमने कभी सोचा नहीं। यस सर, आपका नाम बोलें। यस, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, हिंदू कॉलेज से। सबसे पहले तो DRC कॉलेज और बाकी कमेटी का धन्यवाद कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया, और उसी के साथ साथ IAPT का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपेरिमेंट डेवलप किए हैं खुद ने। टीचिंग एड्स जिसको कहते हैं हम, वो टीचिंग एड डेवलप किए, और विज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने के लिए इनका इस तरह का जो प्रयास है, जिसको जितना चाहे उतना उसकी सराहना की जाए उतना ही कम है। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बाकी टीचर्स भी इनसे जुड़ें, और इस चीज़ को और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने का जो है प्रयास करें। जैसे कि आजकल कोई भी चीज़ है, हम देख रहे हैं कि ना हमारा रुपया गिर रहा है, उधर डॉलर बढ़ रहा है। हो क्या रहा है कि हम लोग अगर आइसक्रीम भी खाते हैं, हमने वाडीलाल की आइसक्रीम खाई, स्ट्रॉबेरी की खाई, उनका कोई पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। अब उस फ्लेवर पे पेटेंट है अमेरिका का। 20 रुपये की आइसक्रीम आपने खरीदी, उसकी कुछ रॉयल्टी वो अमेरिका को बेवजह ही जा रही है। चीज़ें हम भारतीयों ने भी कई तरह की डेवलप की, पर हम लोगों का जो उसको संजोने का जो तरीका है वो उतना बेहतर नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज़ का या दूसरे देशों का है। वो अपनी खोजों को पेटेंट के रूप में संजो कर रखते हैं, और उस चीज़ को हमें बढ़ावा देना होगा। जैसे कि अभी रिसर्च में भी BSc में भी रिसर्च आ गया है, BSc फाइनल ईयर में करके, तो वो उस रिसर्च को किस तरीके से हम इनोवेशन की तरफ और नए डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएं। अब बाज़ार में बहुत सारे तरह तरह के छोटे छोटे मॉड्यूल्स, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर्स और तमाम तरह की सामग्री अवेलेबल है, जो भले ही चाइना की तरफ से आती है, लेकिन उनको यूज़ करके भी हम तमाम तरह की डिवाइस डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे एक एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता है IC 555 का, या IC ऑपरेशन एम्पलीफायर्स के। ये वे बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं। IC 555 एक छोटे से माइक्रोवेव ओवन में भी वो लगी होती है, और एक बड़े एरोप्लेन में भी IC 555 लगी हुई होती है। कैसे इन चीज़ों को कंसेप्ट को समझने के बाद इनोवेशन की तरफ लेके जाया जाए, पेटेंट्स की तरफ लेके जाया जाए, और जब पेटेंट फाइल हो जाए उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ लेकर के जाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएँ।
और उसी के साथ हम क्यों दूसरे लोगों की टेक्नोलॉजी खरीदें, दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं खरीदें। जैसे कि अभी पिछले 2 साल पुरानी कोई बात है, हमें अपना IIT दिल्ली की लेबोरेटरी के लिए 2 मिलियन फ्रेम पर सेकंड का कैमरा खरीदना था। अब अमेरिका उसको बनाता है तो मतलब हमारा ये आम कैमरा 25 फ्रेम पर सेकंड या 30 फ्रेम पर सेकंड तक का होता है, कुछ कैमरे 60 फ्रेम पर सेकंड तक का देते हैं। हाई स्पीड कैमरा सोचो 100 फ्रेम पर सेकंड या 1000 या 2 मिलियन, यानी कि बंदूक की गोली भी अगर जा रही है तो उसको भी बहुत स्लो से वो रिकॉर्ड करता है। 2 मिलियन फ्रेम पर सेकंड का कैमरा हमें खरीदना था IIT दिल्ली की लैब में, 2 करोड़ कॉस्ट थी उसकी। अमेरिका ने हमें सेल करने से, हमारी लैब को सेल करने से मना कर दिया, जबकि उसका इन्वेंटर इंडियन ही है, बट उसने अमेरिका जा कर के उसको इन्वेंट किया है, तो उसके जो कॉपीराइट्स हैं वो अमेरिका के पास हैं। हमारी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद DRDO का कोई एक प्रोजेक्ट था हमारा, उसके लिए हमें लेना था, तो उन्होंने कहा कि आर्मी पर्पज़ से आप लोग हम इसको नहीं देंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1 मिलियन फ्रेम पर सेकंड का कैमरा 1 करोड़ रुपए में उन्होंने हमें दिया, और वो 1 साल से लैब में ऐसे ही रखा है। अब उस पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है, तो पहले तो वो लोग हमें देते नहीं हैं। दूसरी चीज़, अगर हैं रिसोर्सेज हैं तो उस रिसोर्सेज पे काम करने का जो टेम्परामेंट चाहिए, जिसे डेवलप करने के प्रति के लिए IAPT काम कर रहा है, उस तरह का टेम्परामेंट डेवलप किया जाए। साथ ही उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले जाने की तरफ भी काम किया जाए। आपने कुछ इनोवेट किया है तो उसे पेटेंट कराया जाए। ये उस स्तर का इनोवेशन की तरफ, यहाँ से छोटे एक्सपेरिमेंट से उस तरह के एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएं कि हमारे नंबर ऑफ़ पेटेंट्स बढ़ें, नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बढ़े, रेवेन्यू जनरेट हो। तो यही एक मैसेज इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ में मैं प्रेषित करना चाहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद। काफ़ी पॉजिटिव सोच आपकी कि रिसर्च एंड इनोवेशन शुड बी कनेक्टेड विद द रेवेन्यू जनरेशन। ओके, ये जो मिली सेकेंड शटर स्पीड की बात है, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, अब इसको और आसानी से कैसे समझी जाए, ठीक है ना। आप लेज़र बीम तो समझते हो, यहाँ से यहाँ जाने में कितनी देर लगती है और लौट के आती है, कितनी देर लगती है लौट के आती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है, तो कैन यू कन्वर्ट इट इनटू टाइम? दिस इज व्हाट इज रेफरेंस। हाँ, तो कुछ नंबर की बात करें, यदि ये 10 फुट जाती है लाइट तो कितनी देर लगेगी? 10 फुट लाइट, हाँ हाँ सही। तो ऐसे बताते हैं या फिर कैसे बताया जाए? हाँ ठीक है, तो इसको अब हमारी तरफ से लीजिए, इसको आप नैनो सेकंड में बोलिए। हाँ? 10 फीट में, 10 फीट हाँ कितना आया, कितना आया? हाँ हैं, परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा लगा ना? ओके, तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो बिकती है। दिस इज़ व्हाट विनोद जी सेइंग, ठीक है ना। तो यूरोपियन जो काम करते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना। बोलते क्या हैं, 10 नैनो सेकंड डिस्टेंस का रिजोल्यूशन है उनका, ठीक है ना। गोली, बंदूक की गोली चलती है तो ये फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हैं, ओके, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, यहाँ आपके पास मोटर्स मिलती है ना टेप रिकॉर्डर की, CD की, कितने RPM में चलती है, उसमें लेज़र बीम डालो, एक छेद कर दो, पुट 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 पुट, लाइट चॉप होके जाएगी कि नहीं? चॉपर बनाते हो, टाइम डिके करने के लिए करा। तो इस तरह से उसको क्वांटिटेटिव कीजिए,
Okay, and set up an experiment in the lab. अब वहाँ कहाँ 1 करोड़ रुपए चाहिए? सर नहीं, जो डीसी मोटर होती है 12 वोल्ट का, उसके वजह से 1800 आरपीएम टच करी जाती है, तो कम हाँ, तो आपकी विड्थ कितनी आ गई वहाँ इसकी ऑप्टिकल पल्स की? आप डालो LDR पे, ठीक है, तो पल्स बनी, लाइट आई, तो LDR का रेजिस्टेंस चेंज हुआ और वापस हाई हो गया, तो एक पल्स जनरेट हो गई, ठीक है। इस पल्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, हाउ मच इज द विड्थ ऑफ द पल्स एंड कोरिलेट विद द डिस्टेंस। ओके, बट लिमिटेशन ये है कि हम मैकेनिकल माध्यम से पल्स जनरेट कर रहे हैं, कुछ किलो ऑर्डर्स तक ही कर सकते हैं। अगर मिली ऑर्डर्स में करना है तो वहाँ मैकेनिकल से करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, ठीक है ना। दिस इज ऑल मैकेनिकल, बट मैकेनिकल दिखती है व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग। ओके, इलेक्ट्रॉनिक आपको पता नहीं चलता, वो ट्राइमेट्रबल पाइप से, ठीक है, मेगाहर्ट्ज की पल्स जनरेट कर दी। अब मेगाहर्ट्ज की पल्स आपको दिखेगी कहाँ? CRO पे देखनी पड़ेगी। हाँ, IR कैमरा करेक्ट। ओके, तो विजिबल डोमेन में काम करना या ह्यूमन परसेप्शन में काम करना, ठीक है ना, वो टीचर्स का रोल होता है। वट एवर वी हैव लर्न फ्रॉम प्रोफेसर बाबूलाल सराफ, मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, ठीक है ना, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, वी शुड टीच द नंबर्स एंड द डायमेंशन सच दैट दे कम इन द रेंज ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। ओके, तो जब हम पढ़ाएं, यही बात मैं दोबारा से कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि वो जो नैनो सेकंड है, तो ये बोलते हैं कि लाइट चलती है 1 नैनो सेकंड 1 फीट, ठीक है ना। ओके, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, तो 1 फुट चलने में 1 नैनो सेकंड का टाइम लगता है। देन इट गोज़ होम टू द स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ जाएगा। 10 फुट चला 10 नैनो सेकंड, 50 फुट चला 50 नैनो सेकंड। तो उसके बाद लेज़र बीम है आजकल, लेज़र बीम से फर्स्ट से डिस्टेंस नाप के बताता है, ओह 20 फीट का कमरा है। नहीं, आजकल सिविल इंजीनियर आता है, वो क्या करता है, इधर से लेज़र डाली लाइटें, इधर से लाइटें, इधर से डाली, और सारी डिस्टेंस उसके आ गई, ठीक है, राइट। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द नंबर्स। ओके, और वो नंबर फिर ह्यूमन परसेप्शन की रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन परसेप्शन की रेंज मीन्स यू कैन मेजर द डायमेंशन यूजिंग द लेज़र विद द सेम मैथमेटिकल फार्मूला। ओके, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्टर लगाया, वो दिखाया, ठीक है, ये इसमें मज़ा नहीं आया, हैं? सर कंक्लूड कीजिए। मैं भी एक फीडबैक देना चाहती हूँ। अच्छा, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, वो रिकॉर्डिंग के लिए, वो रिकॉर्डिंग और ये भी चल रहा है, ये भी लगी, ये भी रख लेते हैं। Good afternoon, everyone. I'm Dr. Prajwalit Shikha from Maitreyi College, and I just want to say that apart from other reasons, one of the most attractive reason to attend this FTP was to attend Dr. Jain and especially Professor Y.K. Vijay sir's session. Why so? Because I'm also member of IAPT and I have also served as resource person with RC4, and I have been associated from 10 long years, and I have seen sir's work, and I must say that the love for physics has developed when I joined IAPT, and I've seen people working so passionately in the field of physics. And one more thing I want to say that this is the second time that I'm meeting sir personally, and 9 years back in Vivekanand Global University, I went with 4 of my students and one of my colleagues with a model on carbon nanotube, and there I met sir, and there I saw 2 different labs for 2 different purposes. One lab was this innovation hub, and as soon as I along with my students entered in that hub, we just saw all the physics theories dancing in front of us, literally they were dancing, and we were so excited to see that. Like I still remember that I was walking on that wheelchair, solar powered wheelchair was there, and then we could sit on a chair and we could lift ourselves up without putting in much effort, and so many other theories we could see that, and we were so excited. And after that we went to another lab, and sir escorted us to go to that lab. I remember it was a CNT lab where research work based on carbon nanotube were conducted. So I just appreciate this fact that if as teachers, whatever sir and Jan sir has taught us, I'm just taking those
these words from that only, that if as teachers we are able to ignite that passion and love for physics for in students in the classroom by doing all these activities which are very much possible, then we can tell them or drive them to such sophisticated labs like those I see in Vivekananda Global University, that carbon nanotube. So that transition, that responsibility is on teachers, and we have such mentors, and we are very fortunate that we are in that era where we have such mentors to guide us. And I just want to say that which experiment excited me more. So sir, that FCC BCC structure, crystal structure, I never thought that I can explain that through such easy demonstration in the class. So that was, and literally when I went back, I just looked into the pictures and it appeared differently to me, very different than earlier. And another one, that Bohr orbit, those electron waves in that orbit. So these two experiments excited me the most. And just now sir told, Jan sir, that as teachers our duty is to develop scientific temperament in the students. So that is the takeaway. And sir, you have also taught us that whatever we are teaching, we have to teach with a larger perspective, like we have to think that how this is affecting the environment, and like it should be for some social cause. So whatever we are doing, we are teaching physics, and physics is so much close to nature that we can definitely teach students physics concepts, as well as we can sensitize them towards various social causes. So thank you so much, sir. Both of you. So now it's time to wind up the session, and I'm here to present the vote of thanks. But before that, I want to request you all to please be seated for a group photo with sir. Sir will going to sit over here, and then we will going to have a group photo over here only, because in the canteen area it is difficult to have a group photo. Okay. So I'm thankful to the Professor Vijay sir and Dr. Vipin sir for being the resource person in the FDP and sharing the experiments, physics experiment in simple way to all the faculty members. And I'm sure all the faculty members have learned a lot from this particular FDP, and they will going to try to demonstrate few of these experiments in their college to their students. And if possible, if they want such an innovation hub lab in their college, they will definitely going to contact Professor Vijay. Thank you sir again.